Welcome viewers. Today's topic is consignment accounting. First of all, I want to inform you that my series of video on financial accounting includes entire chapters relating to financial accounting and useful for different universities at degree level, either in first year degree, second year degree or third year, or if there is CBCS system, semester 1 to 6, जहाँ भी फाइनेंशियल अकाउंट के नाम से सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हम सभी चैप्टर की जानकारी अपने वीडियो के सीरीज में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश है इस तरीके से आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड सभी जानकारी प्रस्तुत करें। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड चैप्टर डिफरेंट यूनिवर्सिटी, इंडिया के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी ईयर में पढ़ाई हो रही हो, चाहे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉमर्स, सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम, थर्ड ईयर ऑफ बीकॉम, या अगर सीबीसीएस सिस्टम चल रहा है तो सेमेस्टर 1 to 6 इन चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पढ़ाई में आती है। सभी की जानकारी प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य है। इन दिस सीरीज ऑफ वीडियो रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, I will try my best to present a stepwise detailed information such as why and where consignment accounting is needed. कहाँ पर इसकी जरूरत है और क्यों इसकी जरूरत है, इसकी जानकारी हम आपको कराएंगे सबसे पहले। इसके बाद कुछ जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स है, जैसे कंसाइनर, कंसाइनी एंड कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, इनकी भी जानकारी हम आपको देंगे। इसके नेक्स्ट में हमारा आएगा वो सभी लेन देन जो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैक्सिमम जो लेन देन होते हैं, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस इन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी to be recorded in consignment account and other transactions also. Next हमारा जो आएगा टॉपिक वो है specimen of consignment accounting, and then problem relating to consignment account to be discussed. Problems like calculation of commission, problems like calculation of unsold stock, calculation of wastage of stock, wastage either in transit or at consignee's place, all are included in my videos. Next is goods sent by consignor and to consignee at cost price or at invoice price. In both ways, accounting or consignment accounting will be presented as much as possible with example, with illustration and their solution. Some special problems relating to consignment accounting also included in my study. Next point is, and last point is, journal entries relating to consignment accounting all are included in this video. Now, I am going to introduce consignment accounting. As we know, consignment accounting related with business activities, and the beginning of business activities from production activities, production made by producers, and end of business activities at consumption activities, consumption made by consumers. The next problem is how the commodities delivered from producers and up to consumers. There are so many ways for delivering the goods from consumers, from producers and up to consumers. Number 1 is through middleman, number 2 is branches, and number 3 is commission agent. The objective behind producing is to earn more and more profit, to produce at minimum cost and of best quality. In other words, to satisfy their consumers. जैसा कि हम जानते हैं, हमारा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग व्यवसाय के लेन देनों पर आधारित है, और व्यवसाय का लेन देन जो होता है
वह प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक, यानी शुरुआत होती है प्रोडक्शन एक्टिविटीज से, और प्रोडक्शन एक्टिविटीज उत्पादन का कार्य उत्पादक के द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है, जबकि कंजम्पशन का कार्य कंज्यूमर्स के द्वारा किया जाता है। अब समस्या हमारे सामने में है कि कैसे प्रोड्यूसर्स के पास से कंज्यूमर्स के पास सामानों की सुपुर्दगी, डिलीवरी किया जा सके। इस पर्पस से अनेक माध्यम प्रचलित हैं, जिसमें से पहला एक तरीका जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है मिडिलमैन, थ्रू मिडिलमैन, मध्यस्थों के माध्यम से। दूसरा है ब्रांचेस के माध्यम से। तीसरा है कमीशन एजेंट के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं, प्रोड्यूसर्स का ऑब्जेक्टिव होता है सस्ते में और अच्छे क्वालिटी का सामान बनाना, दूसरे शब्दों में अपने उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना। यदि वह मिडिलमैन के माध्यम से सामान बेचता है तो इस स्थिति में मिडिलमैन में चूंकि अनेक पक्ष प्रत्यक्ष रूप से सामान को सुपुर्दगी के लिए इंगेज रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लगाए जाते हैं, इन्हीं कारणों से हर एक पार्टी अपना प्रॉफिट लेगा। तो इस तरीके से जो कॉस्ट आएगा कंज्यूमर के पास वो बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, इनका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इन कारणों से वे वस्तुओं में मिलावट करने में या अन्य गलत रास्ते से प्रॉफिट कमाने के लिए प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप क्वालिटी सेटिस्फैक्शन भी हमारे कंज्यूमर्स को नहीं हो पाता है। इन्हीं कारणों से प्रोड्यूसर्स अनदर वे ऑफ डिलीवरिंग गुड्स इज बीइंग अडॉप्टेड, एंड दैट इज थ्रू ब्रांचेस। शाखा के माध्यम से सामानों की सुपुर्दगी की व्यवस्था भी हेड ऑफिस करता है। मतलब इसमें बाहरी पक्षों पर हम डिपेंडेंट थे, इसमें है कि खुद वो प्रोडक्शन करता है और खुद वो सामानों की सुपुर्दगी अपने ही ब्रांचों के माध्यम से, अपने ही एम्प्लॉय के माध्यम से कस्टमर्स के बीच में उपलब्ध कराता है। इस कारण से जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा फुलफिल हो पाता है। बट द प्रॉब्लम बिहाइंड सच process is both the activities production and selling are difficult one। दोनों की दोनों क्रिया, दोनों का दोनों कार्य, उत्पादन का कार्य करना और सामानों को बेचने का काम करना एकदम डिफरेंट नेचर का है और कठिनाई भरा है। अगर इफ प्रोड्यूसर्स कंसंट्रेट इन देयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, सेलिंग एक्टिविटीज इफेक्टेड। If they concentrate on selling activities, production activities affected। यदि वह उत्पादन के कार्य में लगता है तो बिक्री का कार्य प्रभावित हो जाता है, बिक्री के कार्य में लगता है तो फिर उत्पादन प्रभावित हो जाता है। इन्हीं कारणों से एक तीसरा रास्ता अपनाया गया, जिसमें कि प्रोडक्शन हम खुद करते हैं, लेकिन सेल करने के लिए आउटसाइडर्स को, बाहरी व्यक्तियों को कमीशन एजेंट के रूप में हम अपॉइंट करते हैं। इस तरीके से सामान के डिलीवरी का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। जैसा कि हम जानते हैं, पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल बेचा जाता है, फ्रॉम रिफाइनिंग और प्रोडक्शन प्लेस, पेट्रोल जो है आ जाता है कमीशन एजेंट के पास में और वहां से डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचा जा रहा है। गैस एजेंसी की बात करें तो गैस एजेंसी भी जहां पर रिफिलिंग या प्रोडक्शन का काम होता है वहां से डायरेक्ट आ जाता है हमारा एजेंसी में और वहां से डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचा जाता है। इसी तरीके से श्री लेदर के जूतों की बात करें तो प्रोडक्शन प्लेस से आ जाता है दुकानों में, और उस दुकान का ओनर कौन है, उस पेट्रोल पंप का मालिक कौन है, उस गैस एजेंसी का मालिक कौन है, तो उस शहर का कोई आदमी, प्रतिष्ठित आदमी जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया और एजेंसी ले लिया, एजेंसी दे दिया गया, उसके द्वारा ये सेल का काम किया जाता है। तो इस तरीके से हम श्री लेदर के जूतों की दुकानों को देखें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि कमीशन एजेंट के थ्रू प्रोड्यूसर्स अपने सामानों को बेचता है। इस परिस्थिति में क्या होता है कि प्रोडक्शन में वो पूरी तरीके से इंगेज रहता है और अच्छे तरीके से सक्सेसफुली प्रोडक्शन कर पाता है, और सेल के लिए कमीशन एजेंट के थ्रू सामानों को बेचता है, एकदम आउटसाइडर पर्संस के थ्रू। इससे एक और फायदा है, ऐसा भी नहीं है कि फ्रीडम है उसको पूरी तरीके से, सामान ये प्रोड्यूस करेगा, उसी सामान को बेचना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा सामान नहीं बेच सकता है। रेट ये फिक्स करेगा, उसी रेट में बेचना है। हाँ, हर एक बेचे गए आइटम और लीटर और सिलेंडर पर उसे कमीशन मिलना है। इन्हीं कारणों से जब हम अकाउंटिंग करते हैं, इस कंडीशन में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये अकाउंटिंग कंसाइनर और कंसाइनी, यानी जो सामान भेजता है प्रोड्यूसर्स जो है वो कंसाइनर है, वो सामान भेजता है कमीशन एजेंट को जो कि कंसाइनी है,
कि आप हमारे सामान को बेचो, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पर बेचो, इसके लिए हम आपको कमीशन देंगे। और इससे रिलेटेड अकाउंटिंग मतलब ट्रांजैक्शंस इन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। दिस अकाउंटिंग इज नोन as consignment accounting, and this accounting is prepared by consigner, means producer, to know their profit and loss position for individual consignee. तो इसकी अकाउंटिंग जो है कंसाइनर अपने बुक में बनाएगा हर एक कंसाइनी के लाभ हानि को जानने के लिए, और इसी अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। थैंक यू।